ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਪੇਅਰ ਹੈਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਅਰ ਹੈਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਇਲਸ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਮਿਥਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ वर्क परमिट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਈਜ਼ੀ ਹੈ वर्क परमिट लेना? देखो मैं वर्क परमिट इंडिया से डायरेक्ट मिलना काफी टफ रहता है जी। एक एम्प्लॉयर को जो कनाडा के अंदर बैठा है उसको जस्टिफाई करना पड़ता है कि ये मेरे को जो स्किल है इस पे कोई मिल नहीं रहा कनाडा के अंदर, कोई लोकल बंदा नहीं मिल रहा, एंड जस्टिफाई करना पड़ता है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा नहीं रहे, उसका वो कंपनी को ये बताना पड़ता है। फिर कंपनी को परमिशन मिलती है कि आप इंटरनेशनली किसी को रिक्रूट कर पाओ जी। ऐसे इंडिया के अंदर भी अगर आपको है कि मेरे कनाडा में वर्क मिल जाए तो काफी टफ रहता है एंड काफी उसकी कम सक्सेस रेट रहती है। तो वर्क परमिट में ज्यादातर में फ्रॉड ही देखा है हमने। मैं नहीं कह रहा कि हर वर्क परमिट पे हर बंदा फ्रॉड कर रहा है, बट ज्यादातर वहां पे फ्रॉड हो जाता है। तो एज ए इंडिविजुअल हमको खुद देखना चाहिए कि हम में ऐसी क्या स्किल है कि कोई हमको वर्क दे रहा है, हमको इंडिया में जॉब नहीं लग रही, बट ऐसा हमारे ने क्या सीख लिया कि कनाडा वाले आपको जॉब दे रहे हैं, एंड अगर मेरे को जॉब दे रहे हैं तो बाकी लोग को भी जॉब मिल जाएगी, फिर बाकी लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं? तो थोड़ा सा आपको खुद पे देखना चाहिए कि जो आपको कह रहे हैं कि आपकी जॉब लगा देंगे, इंटरव्यू करवा देंगे, ये सब कुछ तो वो ठीक है या नहीं है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि हम ज्यादातर वर्क परमिट ठीक नहीं होता एंड आपको अवॉइड करना चाहिए। इंस्टेड आप स्टडी वीजा या पीआर या इनफैक्ट टूरिस्ट वीजा पे आप उस पर ट्राई करो, फोकस करें। हाँ जी, हाँ जी जी। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹਟ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਥਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਪੀਆਰ ਲਈ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ बाद ਤੁਸੀਂ पैसे दो, कितना की सच्चाई है कि इस तरह का होता है, पॉसिबल है कि नहीं? होता है। देखो, अच्छा। वीजा के बाद आप पैसे दे सकते हो जी, एंड इसमें सक्सेस रेट भी ठीक ठाक रह जाती है जी, बट एज ए स्टूडेंट आपको देखना चाहिए कि आपके लिए वो चीज ठीक है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जब आप कैनेडियन एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, कैनेडियन एम्बेसी बोलती है, एसडीएस रिक्वायरमेंट में बता रहा हूँ कि आप 1 साल की फीस भरो, आप 1 साल का जीआईसी भरो जो कि आपका खर्चा है। 1 साल की फीस हो सकती है 7 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। जीआईसी आपका ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए हो जाता है, जो कि आपका खर्चा है। वहां जाके वो पैसे निकलवा सकते हो एंड आपके 6 ईच हो। एक कैनेडियन एम्बेसी बता रही है जितना आप इन रिक्वायरमेंट से दूर जाते हो आपके वीजा के सक्सेस रेट कम होता जाता है। ओके, तो अगर आप फीस नहीं भर रहे, अपने फंड शो कर रहे हो और उसके साथ आप एक तरह से अप्लाई कर रहे हो, तो एक तरह से आप तुक्का मार के देख रहे हो। तो इसके अंदर सक्सेस रेट कम हो जाती है, आपके पैसे कम लग रहे होते हैं, तो आपको लगता है चलो अच्छी स्कीम है यार, अगर वीजा आएगा तो ये 80 पैसे देंगे। लेकिन तो चांस 1 या 2 बार वीजा अप्लाई होता है। अगर आपने चांस कम कर लोगे कुछ पैसे बचाने के लिए, तो मैं उसको बहुत अच्छा डिसीजन नहीं मानता।
इनफैक्ट आप 1 साल की फीस भरे, ठीक है। इनफैक्ट आप जो बड़ी बड़ी टॉप टीयर कंपनीज देखो, आईडीपी है कंपनी, कैनम है, वो लोग भी वीजा आफ्टर वीजा नहीं करते। तो उसके पीछे क्या रीजन है? कि उनके पास पैसे नहीं है, क्या बच्चे की वो फीस नहीं भर सकते, ठीक है। और एक कंसल्टेंट जो कि 1-2 साल पहले ऑफिस खोला है, वो वीजा आफ्टर वीजा कर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल तो है। झोल यही है कि आपकी सक्सेस रेट कम हो जाता है। कंसल्टेंट वैसे अगर नॉर्मल तरीके से चले एसडीएस के हिसाब से, तो बच्चे के लिए थोड़ा टफ हो जाता है फीस भरना। कंसल्टेंट उसके लिए वो चीज कम इजी कर देता है। बट जब वीजा लगता है तो वो 10 गुना या 20 गुना उससे चार्ज कर लेते हैं। तो जो सक्सेस रेट कम हुई, कंसल्टेंट उसको रिकवर कर लेता है पैसे को। जिस बच्चे का वीजा लग गया उससे ज्यादा पैसे लेते। ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਸ ਫੀਸ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਡਬਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ट्रिपल ਮੰਗਦਾ है। ये भी उसके अंदर भी मैम यही रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो कितना जेन्युइन है, फीस भरी नहीं भरी, वो जेन्युइन ट्रांजैक्शन है या नहीं, वो एक क्वेश्चन मार्क है। सेकेंडली वो बेस्ट कॉलेज की या अच्छी फीस नहीं भरेगा, ओके, वो एक बेकार कॉलेज ही रहता है ज्यादातर। हर बार नहीं, हर कंसल्टेंट नहीं करता, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बस ज्यादातर वो सस्ता सा बिल्कुल प्राइवेट सा कॉलेज होगा जिसकी कम से कम फीस होगी, उसकी वैसी सक्सेस रेट कम है अगर आप फीस भर भी दोगे तो उसके अंदर फिर आपके सक्सेस रेट या वीजा चांसेस कम हो जाते हैं। तो हमने ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा तो आप गोल्ड पे लोन लो, उस पे आप अपनी फीस भरो, बिल्कुल अपने खाते से कॉलेज के खाते में डायरेक्ट फीस डालो। अच्छा कॉलेज लो तो आपको ज्यादा वो बेटर है एक वे, या आप किसी उधारी ले लो पैसे, वो ज्यादा बेटर वे है कि आप कंसल्टेंट पे आंख बंद करके बोलो कि जहाँ भेजना है भेज दो। उसमें कभी कभी होता है अगर बेकार कॉलेज है या इट्स नॉट ए गुड वन, तो अगर आप वहां पहुंच भी गए तब भी आप स्ट्रगल करते हो एज ए स्टूडेंट। आपको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही, आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही, शायद उसमें वर्क परमिट भी ना हो कॉलेज के अंदर, तो फिर वो आपकी स्ट्रगल खत्म नहीं होती, ठीक है। तो मैं उसको इसलिए ज्यादा रिकमेंड नहीं करता। ਬਿਲਕੁਲ, ਵਾਕਈ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਛਾਨਬੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਹੀ ਬਾਤ ਹੋਗੀ, ਬਲ 20000 में कार। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਹੁਣ ਆਇਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਇਲਸ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਤੇ ਆਇਲਸ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ लैंग्वेज जरूरी है समझने के लिए, तो फिर एक कितना सच है? देखो मैम, आइल्स शुरू क्यों हुआ? जब आप एज ए स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे होते हो तो आपको टीचर को सुनना होता है, तो आपकी लिसनिंग अच्छी चाहिए। हाँ जी। आपने खुद बोल के पार्टिसिपेट करना होता है, अपने क्लासमेट से बोलना होता है, असाइनमेंट करनी होती है, तो आपको स्पीकिंग अच्छी चाहिए। खुद असाइनमेंट लिखनी होती है तो आपको राइटिंग अच्छी चाहिए, एंड बुक से आपने रीड करना तो आपको रीडिंग अच्छी चाहिए। इसलिए इन 4 स्किल्स का टेस्ट होता है। लो आइलेट्स अगर मान लो आपके 5 बैंड है रीडिंग के अंदर, मतलब आप बुक पढ़ के आपको समझ में ही नहीं आएगा एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा तो आप परफॉर्म अच्छा नहीं करोगे, परफॉर्म अच्छा नहीं करोगे तो आप फेल होगे, फेल होगे तो आप चांसेस है कि आप फिर वहां पे लूप होल्स ढूंढो या गलत काम करो या ड्रॉप आउट हो जाओ। तो कॉलेज का भी नुकसान होता है, उसकी फीस चली जाती है, एम्बेसी का भी कैनेडियन गवर्नमेंट का भी नुकसान होता है, एंड बच्चा भी फिर दूसरे रास्ते ढूंढता है, वर्क परमिट के लिए करेगा या किसी चीज के लिए करेगा। तो ये श्योर करना कि बच्चा सक्सेसफुली उस कोर्स को कंप्लीट करे, आइलेट्स स्कोर इसलिए डाला गया है। अच्छा, अगर बच्चा आइलेट्स नहीं दे रहा तो या तो उसके 12वीं में 80% 90% हो इंग्लिश के अंदर, तब आप उसको फिर भी एक सेंसिबल तरीके से अप्लाई कर सकते हो, उसका चांस है उसका वीजा आ जाए। इनफैक्ट काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज भी उसको ऑफर लेटर दे देंगे विदाउट आइलेट्स। लेकिन अगर बच्चे के 12th में भी इंग्लिश में कम नंबर हैं और आइलेट्स के अंदर भी कम नंबर हैं या पीटी के अंदर भी कम नंबर हैं, तो ऑलमोस्ट 0% चांस हो जाता है उसका वीजा लगने का, बहुत कम चांस हो जाता है। तो मैं उसमें रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वीजा अप्लाई करो, उसमें कंसल्टेंट कुछ भी नहीं कर सकता जी। बट ये कर सकता है कि आप कंसल्टेंट को पता है 5 बैंड हैं, इनका वीजा नहीं आएगा, 20,000 रुपए ले लिए, 30,000 रुपए ले लिए, एसओपी के पैसे ले लिए, नोटरी के पैसे ले लिए, फाइलिंग के पैसे ले लिए, ऑफर लेटर के पैसे ले लिए, तो वो 50, 60, 70 हजार रुपए, लाख रुपए कोशिश करते हैं खींच लें, ऐसे बिल बना, पता है कि वीजा नहीं आएगा तो वो बिल बना देते हैं बिल्कुल। तो आप एक बार 20-30 हजार रुपए दे के आप अटक जाते हो, तो बाकी भी प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ती है। यानी ये मान चाहते हो कि कंसल्टेंट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਖਾਲੀ नहीं चाहता स्टूडेंट ਨੂੰ एक किस्म ਦੇ ਨਾਲ। तो अगर वो बिजनेस मॉडल है किसी कंसल्टेंट का तो शायद वो आपको बोल सकता है बिल्कुल कि आप विदाउट वीजा विदाउट आइलेट्स अप्लाई कर लो, बट मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा। एंड अगर आप कर सकते हो आइलेट्स तो जरूर करो।
ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 12th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾयद ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ इंग्लिश के ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ अंदर ਕੀਤਾ ਜਾ हाँ जी ਸਕਦਾ ਹੈ हाँ जी, फिर आप ट्राई कर सकते हो। ਫਿਰ हाँ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਚਾਂਸੇ ਕਹਿ ਲਓ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਪੇਅਰਹੈਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ DLI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੇ जानना चाहेंगे कि DLI है क्या है। मैम DLI नंबर होता है कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन होती है, लाइसेंस होता है जी कि आप इंटरनेशनल बच्चे रिक्रूट कर सकते हो जी। तो DLI नंबर होना इम्पोर्टेंट है जी बट DLI नंबर ही सब कुछ नहीं होता। DLI नंबर के बाद आपको चेक करना होता है जिसके पास DLI नंबर है क्या इसके पास वर्क परमिट है कॉलेज के पास, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जी वो आपको चेक करना है। उसकी रैंकिंग क्या है, उसकी रेपुटेशन क्या है, कब से वो खुला हुआ है, कितना सक्सेस रेट है, तो ये चीजें भी चेक करनी होती है। तो सिर्फ DLI नंबर है करके आप डन कर दो कॉलेज को तो वो भी एक गलत डिसीजन है। नो डाउट DLI नंबर इज इम्पोर्टेंट बट वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बाद आप वर्क परमिट चेक करो और बाकी चीजें भी चेक करनी जरूरी है जी। हाँ जी। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕਿ हाँ। ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ। हाँ मैम देखो ऑफर लेटर होता है जो कॉलेज इशू करता है जी एंड वीजा होता है जो एम्बेसी इशू करती है। जी एम्बेसी की अपनी कंडीशन है, कॉलेज की अपनी कंडीशन जी है। कुछ पंजाब से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, चाइना से लोगों ने अपने वहाँ पे कॉलेज खोल दिए। ओके उन लोगों का मेन एम ही होता है कि आप ऑफर लेटर जितना हो सके दो, बच्चों को बांटो। उनका सक्सेस रेट से ज्यादा मतलब नहीं होता है कितने बच्चों जितनों को हम ऑफर दे रहे हैं कितनों का वीजा आएगा कितनों का नहीं आएगा। तो उसके अंदर आपके वीजा के चांस कम होते हैं। ऑफर लेटर तो मिल जाता है बच्चों के बट बच्चे के वीजा के चांस कम है क्योंकि एम्बेसी को ही पता है कि बच्चा अच्छे कॉलेज में नहीं जा रहा तो उसका जो पर्पस ऑफ स्टडी होता है कि क्यों उसने पढ़ना है वो जस्टिफाई नहीं होता। ओके अगर आप वहाँ पे एक अच्छे रैंकिंग पे नहीं जा रहे एज ए स्टूडेंट जी मतलब आप जेन्युइनली पढ़ना नहीं चाह रहे, एक तरह से ये इंप्रेशन जाता है जी। जेन्युइनली आपका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, जी आप अच्छे में कोशिश कर रहे हो, टॉप में जा रहे हो मतलब आपकी ज्यादा इंटरेस्ट है। जब आप टॉप रैंकिंग में जाते हो, एडमिशन लेते हो, ऑफर लेटर लेते हो, वो थोड़ा मुश्किल होता है मिलेना। बिल्कुल लेकिन अगर आपको मिल गया तो आपका वीजा आसानी से आ जाएगा। जी जो लो रैंकिंग है उसमें ऑफर लेटर लेना आसान है बट वीजा लेना मुश्किल हो जाता है। वीजा लग जाए तो आगे भी फिर PR और जॉब थोड़ी मुश्किल हो जाती है। एंड आपके क्लासमेट भी ज्यादा अच्छे नहीं होते अगर लो रैंकिंग है तो वहाँ पे भी आपको एक डिसएडवांटेज होता है। यानी ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ यूनिवर्सिटी या कॉलेज जरूर चेक कर लो। हाँ जी हाँ जी, उसकी इससे- क्या रैंकिंग गूगल हाँ, करके देखो। जी जी टॉप कॉलेजेस, टॉप 20 कॉलेजेस ऑफ बिल्कुल। ओंटारियो, टॉप 20 ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, बिल्कुल टॉप 10 ऑफ एल्बर्टा, स्केचवेन, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, ये सब आप चेक करो। हाँ जी। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਂਜੀ। ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਧਰ हाँ ਉੱਧਰ जी। ਜਾਣ ਦੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ। मैम सेटिंग वगैरह किसी की है नहीं, एम्बेसी में सेटिंग पॉसिबल नहीं होती। जी वो तो मैम एक तरह से एक ट्रिक ही होती है जिसके अंदर आप 10 लोगों को बोलते हो जी मेरी सेटिंग है, जी मेरे को आप पैसे जमा करा दो। आपको भी पता है 10 में से 3-4 का वीजा आ जाना है। जिनका वीजा आ गया आप उनके आप पैसे खा जाते हो और जिनका नहीं लगा आप उनके लौटा देते हो। तो ऐसे ही कुछ लोग 12th के रिजल्ट के लिए भी करते हैं, बच्चों को बोल देते हैं फेल हो गया मैं जी। पास करा दूंगा, ठीक है, या इंजीनियरिंग के रिजल्ट में या बैचलर के रिजल्ट में। जी, तो किसी के साथ ऐसा हो भी चुका होगा। जी तो यही है मैम कि इसमें सेटिंग नहीं होती। तो सेटिंग कोई बोल रहा है तो उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें, ठीक है। जितने आपके चांसेस हैं अभी या जब आप अप्लाई करो उतने ही रहेंगे। अगर आप उसको सेटिंग के लिए पैसे दे दोगे तब भी सेम चांसेस रहेंगे। ਓਕੇ हाँ जी। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ नहीं। ਸੈਟਿੰਗ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ नहीं ਸਕਦਾ ਹੈ। मैम बिल्कुल भी ਸੋ नहीं। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਾਈਲਸ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲੋਲੀਪੌਪ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਰਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਊਬੈਕ ਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਤੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕੀਤਾ हाँ जी, ਜਾਂਦਾ हाँ जी। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। मैम ज्यादातर कॉलेज वहाँ पे आपके प्राइवेट कॉलेज हैं। ਓਕੇ तो प्राइवेट कॉलेज के अंदर इजी है ऑफर लेटर निकालना। तो एज ए कंसल्टेंट मेरे लिए इजी है, मैं क्यूबेक का ऑफर लेटर आपको दे दूं कॉलेज का। जी
एज कम्पेयर टू किसी टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ एनी अदर स्टेट, एल्बर्टा का, स्केचवेन का, जी या इवन ओंटारियो का भी। तो क्यूबेक का ऑफ लेटर मंगाना थोड़ा इजी रहता है। इनफैक्ट 5.5 एक में 2 में हो तब भी आपका ऑफ लेटर आ जाता है जी। तो हमारे लिए कन्वीनियंट रहता है उसका अप्लाई करने के लिए। बट अगर बच्चे के हिसाब से देखें तो क्यूबेक एक ठीक ठाक ऑप्शन है, बट बेस्ट ऑप्शन नहीं है। बेस्ट ऑप्शन अनलेस आप बहुत ज्यादा वीक हो फिर आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन बेस्ट ऑप्शन इससे ज्यादा अच्छे स्टेट्स हैं, इससे ज्यादा अच्छे रैंकिंग के कॉलेज हैं, उसको आप टारगेट करो। अगर उनमें नहीं होता इससे गुड बैकअप प्लान। सेकंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन है कि चलो यहाँ नहीं हो रहा, हमने ट्राई किया, फिर आप देख सकते हो चलो क्यूबेक देख लेते हैं। ठीक। बाकी अभिषेक जी किस तरह की ये चीज हो चुकी है ना आजकल, मतलब ਜਿਹੜੀ चीज ਚੱਲਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੇਜ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ हाँ जी, हाँ ਕਿ जी। ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਧਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਖਾਸ ਕਰ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ हाँ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ हाँ, वो फिर वो ਕੀਤਾ प्रमोट ਜਾਂਦਾ ਹੈ। करते हैं मैम। और माइंड स्टूडेंट का भी उस तरह का ही सेट हो जाता है। हाँ मैम, क्योंकि देखो अगर आपने एज स्टूडेंट अप्लाई किया मेरे पास, जी मैंने 2 दिन में आपको ऑफ लेटर ला दिया, जी तो चांस कम है कि आप टूट जाओगे, एक तरह से बिल्कुल बोलते हैं। बिल्कुल लेकिन अगर मैं आपने एक अच्छी जगह अप्लाई किया, वहां पे 1 महीना 1.5 महीना लग रहा है, जी। तो कई बच्चा मुड़ के नहीं आता, बिल्कुल तो हमारा नुकसान हो जाता है। तो 10 बच्चे अप्लाई करते हैं, 1-2 बच्चे कभी नहीं आते, क्योंकि 1-1.5 महीना लग जाता है। कोई दोस्त बोल देता है मेरा 2 दिन में आ गया था, आ जाओ मैं अपने वाले कंसल्टेंट से मिलवा देता हूँ। तो बिल्कुल बिजनेस सेंस के हिसाब से कभी कभी थोड़ा नुकसान हो जाता है अगर आप अच्छे कॉलेज की तरफ जाते हो, बिकॉज उनका ऑफर लेटर आने की पक्का नहीं रहता, 100% नहीं रहता। बेकार कॉलेज में, या आप बोलो क्यूबेक के कॉलेज में जल्दी जल्दी आपको ऑफर लेटर मिल जाते हैं, और उनका यही रहता है कि जल्दी जल्दी ऑफर लेटर, जो अप्लाई कर रहे हैं उसको दो, जो अप्लाई कर रहे हैं क्वालिफाई कर रहे हैं दो, तो इजी है। फ्रेंड्स ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੈਂड्स ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਫਰੈਂड्स ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਲਤ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਫਰੈਂड्स ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੈ? देखो मैं फर्स्ट चीज तो आप एग्री करोगे कि एक कनाडा या इवन ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, न्यूजीलैंड, ये काफी सेफ प्लेस है, काफी सेफ्टी काफी हाई है जी। एंड ये चांसेस कम है कि कोई आप एयरपोर्ट पे उतरे, आपको कोई बैग लेके भाग गया, या फिर कुछ गलत हो गया आपके साथ, किडनैप हो गया आप जी। तो अगर हम पाकिस्तान जा रहे हैं, अफगानिस्तान जा रहे हैं, या इवन साउथ इंडिया में भी जा रहे हैं, थोड़ी ज्यादा वैल्यू होती है रिलेटिव की, हमको सेफ्टी महसूस होती है बिल्कुल कि कहाँ पे जाना है, क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी, बस स्टैंड पे ध्यान से चलना है जी जी जी। बॉम्बे के लिए अपन देखते हैं टीवी वगैरह पे कि थोड़ा सा वो है, तो सेफ्टी काफी अच्छी है कनाडा के अंदर। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटिव का या फ्रेंड का ज्यादा वैल्यू नहीं है। इसके अलावा ये देखा जाता है कि जो रिलेटिव है या फ्रेंड है वो क्या हमारी लाइन में नौकरी कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर मैं एक आईटी का बंदा हूँ, मेरा दोस्त है जो गूगल में है वहाँ पे जी, तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं उसके पास चला जाऊँ, बिकॉज उसके बाद मेरी जॉब इजी रहेगी। गूगल वाला जो होगा मेरा फ्रेंड, वो 10 लोगों को और जानता होगा अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग कंपनीज के अंदर, जो मेरे को रिकमेंड करके मेरी जॉब में हेल्प करे। बट अगर मेरा दोस्त ट्रक ड्राइवर है एंड मैंने जाना है आईटी के अंदर, ये अच्छी जॉब लेनी है, तो मेरा दोस्त ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। हो सकता है 10 दिन आपकी हेल्प कर दे, 15 दिन हेल्प कर दे। तो दोस्त के लिए आप बिल्कुल ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लो तो शायद वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है। आप अच्छे रैंकिंग के कॉलेजेस पे जाओ, देखो कि कहाँ कहाँ मेरा हो सकता है, कहाँ कहाँ आसान है वीजा लगना, कहाँ कहाँ आसान है पीआर लगनी, कहाँ कहाँ आसान है नौकरी लगनी। अगर वो सेम से कॉलेज है वहां पे आप फ्रेंड को प्रेफर करो, बट आप ड्रास्टिक बिल्कुल डिसीजन ना लो कि मैंने तो यहीं पे ही जाना है, यहाँ मेरा दोस्त है। हो सकता है वो वहाँ पे आपको अच्छा एडमिशन ना मिले या आपका कोर्स रेलेवेंसी ना बने, ठीक है, तो ऐसे अटकना नहीं चाहिए, क्योंकि ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ हम नए होते हैं क्लास के अंदर, चाइना वाले भी आए हैं, वो भी फ्रेश आए हैं घर से, क्योंकि एक टाइम ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਹ, पर एक पॉइंट तो बाद ਜਦੋਂ स्टडीज खत्म हो जाती है, थोड़ी पीआर लग जाती है, तो वक्री आपकी एजुकेशन ही काम आती है। अगर आपके पास अच्छी जॉब है, सब कुछ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਈਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੌਬਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ नहीं, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ है? मैम आईटी वालों को नो डाउट बहुत अच्छी जॉब्स मिलती है, बट वही एंड नहीं है करियर का, स्पेशली अगर आपके इंग्लिश में कम बैंड है, परसेंटेज कम है। सो अगर एंड आप नॉन मेडिकल में हो तो इलेक्ट्रिशियन की जॉब, प्लम्बर की, डक्टिंग की, एसी डक्टिंग, हीटिंग डक्टिंग की, ये जॉब्स काफी हैवी ऑटोमोबाइल के अंदर आप एज ए मैकेनिक काम कर रहे हो, तो ये जॉब है जिसके अंदर आपको ज्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं चाहिए, इसमें सक्सेस रेट काफी ज्यादा अच्छे हैं, एंड आपकी पीआर एंड जो आगे जॉब लगती है वो भी बहुत अच्छी लगती है जी जी। तो ये भी बहुत अच्छे ऑप्शन है, सिर्फ आईटी ही नहीं है, तो इसमें जा सकते हैं। ऐसे सेम गोज विद हॉस्पिटैलिटी एंड अदर कोर्सेज जी। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਅਰਹੈਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। E5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।